Hello everyone, this is Professor Rita Paude, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. I welcome all for the video series of linear integrated circuits having a subject code 22423. Today, I am going to deliver a lecture on Chapter 1, that is Fundamentals of Operational Amplifier. And today's topic of discussion is op-amp configuration. The course outcome for this course as use op-amp in linear integrated circuits. In the next of this subject, we will go for the different linear applications and the normal applications of linear integrated circuit. For that application, how to use op-amp in linear integrated circuits, we will study here. So, this is a course outcome for the chapter 1. Here, the table shows CO and the PO mapping. So, every unit or every chapter having the one course outcome. So, this is a course outcome for the chapter 1 and how this chapter 1 CO is getting mapped with the PO at a different level. So, let's start with the, as we already discussed about the from PO1 to PO7 in the last lecture. So, this CO1 getting mapped with the PO1, PO2, PO3 and PO4 as well as PO6 and PO7. So, this is a table for the CO and the PO mapping. The learning outcome for this course as the learning outcome shows, after the completion of this course, students will be able to, it means you will be able to explain with sketches the working of the given type of configuration. यहाँ पे अपन जो भी configuration पढ़ने वाले हैं उसको sketches के साथ कैसे explain करना है, कैसे उसके सर्किट डायग्राम निकालनी है, सर्किट डायग्राम के साथ साथ उसको आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकोगे ये भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा आफ्टर द कंप्लीशन. उसके बाद में यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब विद स्केचेस द प्रोसीजर. अभी डिवाइसेस को ट्रबल शूट कैसे करना है जिसमें आपने ऑप-एम्प को यूज किया है ये भी आप लोग ये वीडियो लेक्चर के बाद समझ सकोगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑप-एम्प कॉन्फ़िगरेशन. तो देखो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है. ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन उसके बाद में ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है. देखो यहाँ पे आप लोगों को दो टाइप समझ में आएंगे. वन इज द ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन एंड द नेक्स्ट वन इज द क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन. अभी whenever we are going for the open loop configuration, तो in the open loop configuration there is no feedback from output to input. जब भी तुम लोग कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ने के लिए जाओगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इट इज नथिंग बट योर फीडबैक एलिमेंट. क्या है फीडबैक एलिमेंट. तो आप अगर ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे तो विल नॉट यूज एनी फीडबैक एलिमेंट. क्या नहीं यूज करेंगे फीडबैक एलिमेंट को यूज नहीं करेंगे जो कि आपका आउटपुट से लेकर के इनपुट तक के जाने वाला. अभी फीडबैक क्यों लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम द गेन विल बी इन द सर्किट. गेन हमेशा आप लोगों के सर्किट में रहने वाला है. तो गेन को आप लोगों को एम्पलीफाई करने के लिए, एम्पलीफाई मतलब सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए कि उसमें कोई भी आप लोगों का जैसे अनवांटेड सिग्नल मुझे नहीं चाहिए. व्हेनेवर वी विल ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, हमने पढ़ा है ऑलरेडी. तो उसके लिए वो सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए वी विल यूज द फीडबैक एलिमेंट. बट whenever we are going for the open loop configuration, जब भी हम लोग open loop configuration के लिए जाएंगे तो in that open loop configuration there is no feedback from output to input. आउटपुट से लेकर के इनपुट तक के कोई भी फीडबैक नहीं रहने वाला है. देन सेकेंड पॉइंट इज दैट द डिफरेंशियल सिग्नल presents between the input. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया we will use the two terminals of an op-amp. One is the inverting and the second one is the non-inverting. तो जब भी सिग्नल को एम्पलीफाई करेंगे तो आप लोगों को उसका क्या निकालना है डिफरेंस निकालना है. तो इसीलिए उसको बोलेंगे क्या the differential signal present between the inputs. Present between the inputs
will be amplified by its open loop gain. ओपन लूप का जो भी गेन रहेगा उसी से वो एम्पलीफाई होंगे। उसके लिए अपन कोई फीडबैक एलिमेंट यूज कर रहे क्या? नहीं, उसके लिए अपन कोई भी फीडबैक एलिमेंट यूज नहीं कर रहे, वो अपने आप ही बाय यूजिंग ओरिजिनल ओपन लूप गेन से वो खुद को एम्पलीफाई करेगा, जो कि रहेगा ना 2 × 10⁵, जो कि गेन कितना रहेगा 2 × 10⁵। उसके बाद में यहाँ पे therefore even for a very small magnitude of differential voltage output will reach पॉजिटिव और नेगेटिव सैचुरेशन, मतलब या तो 180 डिग्री फेज या फिर 0 डिग्री फेज, दोनों के लिए यहाँ पे वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंशियल वोल्टेज आउटपुट रीच, वो तो पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा इन द ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। देखो यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे कोई भी फीडबैक एलिमेंट अपन ने दिया नहीं है, सिर्फ आपने क्या किया है कि यहाँ पे वी विल यूज द 2 टर्मिनल्स इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। उसके बाद में दोनों साइड में आप लोगों ने सिग्नल दिए हैं, इन्वर्टिंग सिग्नल एज वेल एज द नॉन इन्वर्टिंग सिग्नल, और दोनों का डिफरेंस दैट इज द VD। VD इज इक्वल टू क्या आएगा V1 माइनस V2, VD इज इक्वल टू V1 माइनस V2, और उसी का अपन ओपन लूप गेन निकालेंगे एट द आउटपुट साइड, जो कि अपना रहता AV। ओपन लूप गेन कितना है AV, तो VO इज इक्वल टू क्या आएगा AV इंटू V इंटू D, सॉरी VD, तो AV इंटू VD इज इक्वल टू क्या रहेगा V1 माइनस V2, बराबर है। सो दिस इज द ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें अपन कोई भी फीडबैक एलिमेंट यूज नहीं कर रहे फॉर एम्पलीफाइंग द सिग्नल। वो कैसे एम्पलीफाई हो गए, तो जो भी अपन डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज ले रहे हैं उसको यूज करके बाय यूजिंग इट्स ओपन लूप गेन वो अपने आप को एम्पलीफाई करते जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो दिस इज अबाउट द ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद में why is op-amp not used as an amplifier in the open loop configuration? नॉर्मली जब भी एप्लीकेशंस को अपन सॉल्व करते हैं या फिर डिजाइन करते हैं तो वी विल गो फॉर द क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन ओनली। किसके लिए जाते हैं अपन से? क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। उसके बदले में कभी भी अपन ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन को यूज नहीं करते, जबकि वो खुद ही अपने सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है, since till we will not use the open loop configuration for the application। अभी देखो यहाँ पे एम्पलीफायर में उसको क्यों नहीं यूज किया जाता, ऑप एम्प यूज क्यों नहीं होता एम्पलीफायर इन द ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन? तो देखो ड्यू टू वेरी ओपन लूप गेन डिस्टॉर्शन इज इंट्रोड्यूस्ड इन द एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल। क्या होता है, उसके खुद के ज्यादा ओपन लूप गेन के कारण वहां पे सिग्नल में डिस्टॉर्शंस आना शुरू होता है। The open loop gain does not remain constant but varies with temperature and power supply as well as due to mass production technique। अभी उसमें क्या होता है, ज्यादा ओपन लूप गेन होने के कारण अभी आपका ओपन लूप गेन जो है वो तो कांस्टेंट नहीं रहता, वो कंटिन्यूसली वैरी रहता है, और अगर वो वैरी हो रहा है तो आपने जो इनपुट सिग्नल दिए हैं उसके कारण आउटपुट सिग्नल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम 101% आने वाली है, बराबर है। उसके बाद में the bandwidth of an op-amp is very small, almost equal to 0. For this reason, the open loop op-amp is not used in practice as an amplifier. Clear everyone? I hope everyone understand the answer of this question. Why is op-amp not used as an amplifier in the open loop configuration? समझ में आया सभी को? सभी को एक चीज ही ध्यान में रखना है कि उसके ओपन लूप गेन के कारण, जो कि वो ज्यादा रहता है, उसके कारण ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि सिग्नल्स में डिस्टॉर्शंस आना, उसका वेरिएशन, ये उसके कारण वेरिएशन के कारण उसका बैंडविड्थ भी 0 रहता है, जिसके कारण आप लोग उसको एज एन एम्पलीफायर यूज नहीं कर सकते हो। एम्पलीफायर का मीनिंग ही ये है कि आप लोगों को लो मतलब वीक सिग्नल को हाई सिग्नल में
कन्वर्ट करना है, और अगर कंटिन्यूअसली अगर वेरिएशंस आ रहे सिग्नल में तो इट विल नॉट बी पॉसिबल टू कन्वर्ट दैट वीक सिग्नल इनटू हाई सिग्नल. दैट्स व्हाई ऑप एम्प इज नॉट यूज एन एम्पलीफायर इन द ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन. क्लियर एवरीवन? देन we will go for the closed loop configuration. अभी closed loop configuration क्या होता है? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब अपन open loop configuration पढ़ रहे थे तो open loop configuration में अपन ने feedback element यूज नहीं किया था. वही अपन जब closed loop configuration के लिए जाते हैं तो we will use here feedback element. क्या यूज करते हैं? feedback element. तो देखो, when some part of the output voltage is feedback to the input. जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे अपन क्या यूज करेंगे? feedback element. when some part of the output voltage is feedback to the input, the configuration is called as a closed loop configuration. क्या बोलते हैं उसको अपन? when some part of the output voltage is feedback to the input, the configuration is called as a क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन. मतलब एक चीज सिंपली ध्यान में रखना है कि ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में वी विल नॉट यूज द फीडबैक एलिमेंट. वही अगर अपन क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन के लिए जाएंगे तो विल गो फॉर द फीडबैक एलिमेंट. देन इन द क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन अ फीडबैक इज इंट्रोड्यूस्ड. feedback is introduced, that is a part of the output is feedback to the input. ऑलरेडी मैंने बताया हुआ आप लोग को कि output is feedback to the input. ये कब पॉसिबल है? ओनली इन द क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन. The feedback can be of the following two types. The feedback can be of the following two types. One is the positive feedback, which is also called as the regenerative feedback, and the second one is the negative feedback, which is also called as the degenerative feedback. पॉजिटिव फीडबैक मतलब जब अपन सिग्नल को जनरेट करते हैं और उसको आउटपुट साइड में लेके जाते हैं तो दैट इज नथिंग बट द पॉजिटिव फीडबैक. वही अगर मोस्टली नेगेटिव फीडबैक अपन बहुत कम एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं, बट वी विल यूज द नेगेटिव फीडबैक आल्सो फॉर द applications in linear integrated circuit. So let's start with the positive feedback. When देखो अभी पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है? If the feedback signal and the input signal are in phase with each other, then it is called as a positive feedback. क्या होता है? जबकि फीडबैक सिग्नल एंड द इनपुट सिग्नल मतलब RF फैक्टर एंड द R1 फैक्टर आर इन फेज मतलब 180 डिग्री में रहते हैं, then it is called as a positive feedback. It is called as a positive feedback and it is used in applications such as the oscillator and the Schmitt trigger और रीजेनरेटिव कंपैरेटर. अपन Schmitt ट्रिगर, कंपैरेटर्स और ऑसिलेटर्स में भी उसको यूज कर सकते हैं, जो कि these are the different applications of the op amp. तो डायग्राम में से पढ़ते हैं. देखो, this is the diagram which shows the two terminals, non-inverting terminal and the inverting terminal. Here is the output and here is the input. आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं? दिस इज अ पार्ट ऑफ द एम्पलीफायर एंड दिस इज नथिंग बट योर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. वी विल गो फॉर द नेक्स्ट यूनिट एंड वी विल स्टडी देयर. तो देखो यहाँ पे इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड किया है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को आप लोगों ने इनपुट दिया है. जब आपने इनपुट दिया है थ्रू द रजिस्टर R1, वहीं से आप लोगों ने फ्रॉम आउटपुट साइड टू द इनपुट साइड एक आप लोगों ने क्या दिया है? रजिस्टर कनेक्ट किया है, विच इज नथिंग बट योर फीडबैक एलिमेंट. हमेशा ध्यान में रखना है फीडबैक एलिमेंट दो ही रह सकते हैं, या तो इंडक्टर या तो कैपेसिटर या तो रजिस्टर. कुछ एप्लीकेशंस में आप लोग उसको जैसे डिफरेंशिएटर इंटीग्रेटर में अगर जाओगे तो इंटीग्रेटर में आप लोग उसको यूज करते हो फीडबैक एलिमेंट में कैपेसिटर, और वही अगर आप लोग इंटीग्रेटर में जा रहे हो तो यू विल यूज द रजिस्टर एज अ फीडबैक एलिमेंट. ये चीज अपन आगे आगे पढ़ने वाले नेक्स्ट यूनिट में आप लोगों को ये सब चीजें, बट बेसिक आपको पता होना चाहिए. अभी देखो पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है. तो जब आपका पॉजिटिव टर्मिनल से आप लोगों ने फीडबैक एलिमेंट कनेक्ट किया है, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव फीडबैक. सिंपली ध्यान में रखना है. देन अगर वो इन फेज है मतलब 180 डिग्री में, तो आप लोग देखो कि यहाँ से ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट में है, तो इट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव फीडबैक. अभी जब अपन फीडबैक फैक्टर को निकालते हैं तो कैसे निकालना है, ठीक है? तो यहाँ पे एक फीडबैक फैक्टर निकालते टाइम आप लोग इसको नाम भी दे सकते हो RF. क्या नाम दे सकते हो आप इसको? RF.
और फीडबैक फैक्टर हमेशा देखो, ये एक बिल्कुल एकदम नोट डाउन ही कर लो आपके कॉपी में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। दैट इज फीडबैक फैक्टर कैसे निकालना है। तो फीडबैक फैक्टर निकालते टाइम आप लोगों को जो भी फीडबैक आपने यूज किया है, तो पॉजिटिव फीडबैक उसके अगेंस्ट का रजिस्टर दैट इज R1 अपॉन, जिसमें लिख के देती हूँ आप लोगों को यहाँ पे, R1 अपॉन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, ठीक है। तो दिस इज द फीडबैक फैक्टर ऑफ दिस पॉजिटिव फीडबैक। कैसे कैलकुलेट करोगे, जो भी आप लोगों का टर्मिनल से जो भी यूज किया होगा, कनेक्ट किया होगा, उसके अगेंस्ट वाला रजिस्टर अपॉन इन दोनों की एडिशन। क्लियर होगा। तो दिस इज अ फीडबैक फैक्टर फॉर द पॉजिटिव फीडबैक। आगे आगे जाके आप लोगों को अलग अलग एम्पलीफायर्स के लिए उसको कैलकुलेट करना है। देन द नेक्स्ट पार्ट, इट इज नथिंग बट द निगेटिव फीडबैक। क्या होता है निगेटिव फीडबैक? तो दिस इज अ डायग्राम शोज निगेटिव फीडबैक। मैंने जैसे आप लोगों को बताया, वहां पे 180 डिग्री फेज शिफ्ट रहता है, यहाँ पे आप लोगों का वहां पे आप लोगों का 0 डिग्री फेज शिफ्ट रहता है और यहाँ पे आप लोगों का 180 डिग्री फेज शिफ्ट रहता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसा होगा, दिस इज अ डायग्राम विच इज कनेक्ट द निगेटिव टर्मिनल्स को अपनी फीडबैक दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने एक इनपुट सिग्नल दिया, वो आप लोगों का 180 डिग्री फेज शिफ्ट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप लोगों का सिग्नल अगर यहाँ पे ऐसा है तो ये यहाँ पे दिखेगा, दिस इज द इनपुट सिग्नल गेटिंग 180 डिग्री फेज शिफ्ट विद द आउटपुट सिग्नल। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने फीडबैक एलिमेंट दिया है एज अ रजिस्टर विच इज डिनोटेड एज अ RF, और इनपुट दिया है इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को V1 एंड V2। क्लियर। तो दिस इज अ निगेटिव फीडबैक एलिमेंट। देखो यहाँ पे क्या दिया, इफ द सिग्नल फेड बैक टू द इनपुट एंड द ओरिजिनल इनपुट सिग्नल आर 180 डिग्री, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि वहां पे 0 डिग्री फेज शिफ्ट है और यहाँ पे 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, देन इट इज कॉल्ड एज अ निगेटिव feedback. Then it is called as a negative feedback if the signal feedback to the input and the original input signal are 180 degree out of phase, then it is called as a negative feedback. In the applications of op-amp as an amplifier, the negative feedback is used. आप लोग पॉजिटिव फीडबैक के निगेटिव फीडबैक भी यूज करते हो बहुत सारे एप्लीकेशंस ऑफ किसके, एम्पलीफायर के एप्लीकेशंस में आप लोग उसको यूज करते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉजिटिव फीडबैक एंड द नेगेटिव फीडबैक अलॉन्ग विद द क्लोज लूप एंड द ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। उसको अपन अच्छी तरीके से इंटरेक्टिव क्लास में भी पढ़ने वाले, मैं वहां पे आप लोगों को सबको बताऊंगी कि हाउ टू कैलकुलेट द op-amp गेन, op-amp का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन, ओपन लूप करो, उसको आप लोगों को अच्छी तरीके से मैं वहां पे समझाऊंगी। So, what are the advantages of negative feedback as compared to positive feedback? अपन negative feedback के लिए क्यों जाते हैं? तो देखो, it stabilizes the gain. क्या होता है? It stabilizes the gain, reduces the distortion, मतलब सिग्नल में कोई भी डिस्टॉर्शंस नहीं आता। उसके साथ साथ बैंडविड्थ को भी इंक्रीज करता है, जो कि ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में नहीं हो रहा था। reduces the effect of variation in temperature and the supply voltage on the output to open. ये सब त्रुटिस किसमें आ रहे थे, ये सारे के सारे एज अ डिसएडवांटेजेस ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में यूज हो रहे थे। दैट्स व्हाई we will not use the open loop configuration. Instead of it, we will go for the closed loop configuration only for the different applications of op-amp. Clear? तो ओनली डिसएडवांटेजेस ऑफ निगेटिव फीडबैक क्या है, निगेटिव फीडबैक का सिंगल एक डिसएडवांटेजेस भी है, दैट इज द लो गेन। जहाँ के आप लोगों को वहां पे हाई गेन था, बट बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे थे कि जो कि आप लोगों को अप्लीकेबल नहीं थे। दैट्स व्हाई वी विल नॉट गो फॉर द ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस लेक्चर समराइजेस विथ, आपने क्या पढ़ा, एक्सप्लेन विथ स्केचेस द वर्किंग ऑफ द गिवन टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। हमने क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ा, उसके साथ साथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडबैक को भी पढ़ा। देन डिस्क्राइब विथ स्केचेस द प्रोसीजर टू ट्रबल शूट द गिवन op-amp सर्किट। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया है कि आप लोगों को सर्किट को कैसे कनेक्ट करना है, उसको कैसे चेक करना है कि दिस इज अ पॉजिटिव फीडबैक और दिस इज अ नेगेटिव फीडबैक।
Thank you so much for listening this lecture very carefully and listening to me very carefully. Thank you so much. In the next lecture, we will study about virtual ground concept, which is the one of the most important part of the unit 1. We will go for it in the next lecture. Thank you so much.